Good morning, students. Welcome back to the class 11 subject business studies. Today we are going with the insurance topic. In that we will see today functions of insurance, what is life insurance or insurance, and then we will see the principles of insurance in today's video. In next video we will carry forward the same topic again, but the content will be little bit more detailed. So let's begin with the first topic known as insurance. What is insurance? As it has been mentioned in the display itself, you can read it by yourself, but I'll read for you. Life is open to risk and uncertainty. So many kinds of things are been there. As you know that the life is uncertain, there are huge risks in your life, and these risks are being assured or it has been taken care by the insurance now. There are risks of death and disability of human life, fire, and burglary risk from properties and so on. In case of occurring of any of the event, the individual or an organization must suffer a great losses. In order to minimize this impact for the such uncertainties, there is a need of insurance. As you know that all the things are having a certain risk, so this risk has to be bared by the organization or individual. So if you take an insurance, then your losses will be reduced because with the help of insurance. So that's why the insurance topic is also an important part. Here it has been mentioned that insurance is an contract between two parties where one party agrees to indemnify. Indemnify means covering the losses and losses. The loss suffered by the other party for the considering for some money known as premium. इंश्योरेंस दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है और दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक पार्टी एग्री करती है कि अगर कुछ भी लॉसेस हो जाए सेकेंड पार्टी को तो उसकी सारे लॉसेस को टेक कवर ये करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ सर्टन प्रीमियम आपको पे करने पड़ते हैं या कंसिडरेशन ऑफ सर्टन मनी आपको पे करनी पड़ती है जिसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरर कौन है, इंश्योर्ड कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, या इंश्योरी कौन है। The party which promises to indemnify the losses is called as insurer. Insurer means life insurance company or insurance company who gives you assurity that if something goes wrong, they will pay for you. It is considered as insurer. The person or the property subject to the risk is called as insured। ऐसा इंसान या जिसने अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस ली हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड इंश्योरेंस लिया हो या रिस्क को वो बेयर करने के लिए कंपनी के साथ में कोलैबोरेटेड हो रहा है, उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। मीन्स आई एम द इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योर्ड, और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट होती है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर आप मनी क्लेम नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी ही पड़ती है एट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और आपको उसका प्रीमियम भी आपको पे करते रहना पड़ता है। Now we are going with the functions of insurance. In functions of insurance, we are having 4 points. One is providing certainty, second is protection, third is risk sharing, fourth is assisting in capital formation. So let's begin with the first point, providing certainties. Insurance company cannot be that much assured that whatever you have taken as a risk, it can be occurred in nearby future. It is not possible. So here it has been mentioned, insurance cannot cover the uncertainty involved in the business. However, it provides certainties of payment for the risk of losses. The insurer charge premium for providing the certainties। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एश्योर्ड नहीं रहेगी या आपको एश्योरिटी नहीं देती कि जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है वो फुलफिल होगा ही होगा। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी एश्योर रखती है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये एश्योर करती है कि अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं तो ये आपके लिए अवेलेबल है। ये अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि आपने एज एन इंश्योरर आपने प्रीमियम पे किया था और एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुए थे।
तो यहाँ पर हम लोग रिस्क को अनसर्टन रिस्क को तो हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज करने में इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटेक्शन। Insurance cannot stop the happening of a risk. However, it also protects against the risk of probable losses that may arise due to happenings of uncertainty events like fire, thief, natural calamities, etc. हमें पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी रिस्क से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्ट कर सकती है पोर्टेबल लॉसेस से, जो अन इवेंट होते हैं या फिर अनसर्टेन इवेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर चोरी हो जाना या फिर फ्लड आ जाना, आग लग जाना। अगर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट पार्ट इज रिस्क शेयरिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा रिस्क बेयर नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी एक तरह का रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूट भी है। इंश्योरेंस is an arrangement in which large number of people who have exposed to the same risk contributing to the fund maintained in the insurance company. The premium paid by all of this is pooled, and in case of loss of any person, compensation is made to him out of such funds. Thus by insurance, risk is shared by a large number of people. रिस्क शेयरिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रिस्क शेयरिंग में इंश्योरेंस ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लेते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस हो या कंपनी के रिलेटेड इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, जितने भी इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है पीपल उसको परचेज ज़रूर करते हैं। और वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि सेम रिस्क अगर है तो कंट्रीब्यूशन भी वो करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में बाय पेइंग प्रीमियम। और प्रीमियम पे करने के बाद में वो एश्योर्ड रहते हैं कि इन केस अगर कुछ हो जाता है तो ये कंपनी हमें हेल्प करेगी। सो यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस बनाती है और बहुत बार आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो फिर वो क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद में रिस्क शेयरिंग यहाँ पर आसानी से कवर किया जाता है। यहाँ पे फुल फ्लेज रिस्क नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मली एज रिस्क लेके काम कर लिया जाता है। यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपने जितना क्लेम मांगा है उतना ही क्लेम आपको मिल जाए, वो एश्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन देती है। इंश्योरेंस कंपनी ये चेक करती है कि जितना आपने क्लेम किया है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और उसके बाद में वो सैंक्शन करती है आपको अमाउंट। नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन कैपिटल फॉर्मेशन। The funds collected by the insurance company in the form of premium are invested by them in the various income generating schemes. It leads to a capital formation in the economy. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम कलेक्ट करती हैं वो प्रीमियम्स को वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती हैं और इन्वेस्ट करके कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। These are the four functions of insurance. In that, first has been providing certainty, second is protection, third is risk sharing, fourth is assisting in capital formation. Now we are into the principles of insurance. We are having here 7 points. One by one we will see. The first is utmost good faith. Very important points. All 7 points are important. It is related to exams also. Be careful with the terms itself. Utmost good faith. A contract of insurance in the contract of Urbimian Fedi, that is a contract fought on utmost good faith. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इसलिए किया जाता है क्योंकि आप वो उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बहुत ट्रस्टवर्दी हो, या वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर अगर आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो ये कंपनी आपको रिटर्न बैक देगी मनी। ये सब गारंटीज को आप ध्यान में रखते हो। तो एज एन कंपनी ओनर आई ट्रस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट and I trust on that industry, then only I pay the premium for my risk. Both the parties, the insurer and the insuree, should display good faith towards each other in regards to the contract. यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस एंड इंश्योरर एंड इंश्योरी जो दोनों हैं
ये दोनों अपने सारी बातें फुलफिल कर दें। ऐसा कह सकते हैं कि वो कोई हिडन एडजस्ट नहीं रख सकते, या ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ छुपाने वाली बातें हैं वो भी आपको यहाँ पे छुपाना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको बता देना है। अगर आपने कुछ छुपाया है और कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर दोनों ही बेयर करेंगे लॉसेस। तो यहाँ पे इंश्योरर एंड इंश्योरी दोनों को ही अपने बारे में या अपनी पॉलिसीज के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में, अपने गुड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को। इसलिए यहाँ पे कहा गया है utmost good faith. It is obligated on the part of an insured to disclose all the material fact about the subject of an insured. इंश्योरर एंड इंश्योर्ड जो है दोनों के बीच में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रियलिटी एस्पेक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ वो एक दूसरे के साथ में शेयर करने ज़रूरी हैं। In case of failing to disclose any material fact, the contract of insurance is viable at the option of an insurer. इंश्योरर फी अगर आप एज एन इंश्योरी आपने अगर डिटेल्स फुलफिल नहीं किए हैं या एज एन इंश्योर्ड पर्सन आपने अगर अपने बारे में बराबर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। Similarly, the insurer must also be cleared by all the terms and conditions in the insurance contract. उसी तरह से इंश्योरर जो है जिसने ये पॉलिसी परचेज की है उसको भी ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पता होने चाहिए, तभी ही वो एटमोस्ट फेथ दिखा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात हम लोग करते हैं तो द इंश्योर्ड मस्ट have an insurable interest in the subject of matter of insurance. Insurable interest means some economic interest in the subject matter of an income contract. जो पैसा आप लगाते हो प्रीमियम में तो उसके ऊपर इंश्योरेंस या इंश्योर्ड कंपनी है, जो इंश्योर्ड कंपनी होती है वो उस पैसों से इंटरेस्ट जनरेट करती है और वो इंटरेस्ट जनरेट करके ही वो आपको पेमेंट देती है। A person is said to be having an insurable interest in the property if he will be adversely affected by its destruction. The insured must either own a part or whole of a subject matter of an insurance, or he must be in such a position of that injured to be would affect by adverse. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल है उसने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे रखा हुआ है, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर उस पर्सन ने इंश्योरेंस में रखा हुआ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको मनी हाफली या फुल्ली मिल सकता है एज एन इंश्योरेंस, तो वो पोजीशन में आपके पास सिचुएशंस क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट बाकी है। इन केस ऑफ एन इंश्योरेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, the insurable interest of an insured must exist at the time of entering into the insurance contract. However, it is not necessary that the insured must own the property at the time of insurance. जब इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो प्रॉपर्टी परचेज होनी ही चाहिए। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इंश्योरेंस प्रॉपर्टी ऑर्डर किया है और उसी साथ साथ आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हो। तो यहाँ पे आप एक ट्रस्टी एज एन प्रॉपर्टी ट्रस्टी होते हो और आप एक बिहाफ ऑफ एन इंस्टीट्यूट आप ये एश्योर करते हो कि अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी है हमारे साथ में। नेक्स्ट पार्ट इज इंडेमनीफाई या indemnity. The term indemnity means security against losses. कुछ भी नुकसान होता है तो उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग indemnity का इस्तेमाल करते हैं। The purpose of this principle is to put the insured in the event of losses in the same position that he occupied immediately before the happenings of the event. ये प्रिंसिपल ऐसा एश्योर करता है कि एज एन इंश्योर्ड कंपनी आपको लॉसेस से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है। जैसे ही कोई इवेंट अकर्ड हो जाता है जिससे मुझे नुकसान हो गया, मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाऊंगा
और इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोसीजर्स फुलफिल करने के बाद में मुझे लॉसेस बेयर करने में हेल्प कर सकती है। इट मीन्स दैट इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द extension of losses suffered by him up to the limitation of amount covered by the policy। जितने की आपने पॉलिसी ली है उतना अमाउंट आप सफर कर सकते हो, उतना अमाउंट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने पॉलिसीज कम ली हैं और लॉसेस ज़्यादा हो रहा है तो वो लॉसेस आपको ही बेयर करने हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने अमाउंट का आपने पॉलिसी लिया है उतने ही अमाउंट तक हेल्प कर सकती है। The insured is not allowed to make any profit on the happenings of the event. The compensation payable and the losses suffered are on the measures in the terms of money. All the insurance contract of fire or marine or a contract of indemnity, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फायर का हो, मरीन का हो, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लॉसेस मेकिंग जो भी लॉसेस सफ़र करने वाले हैं उनको पेमेंट वो कर सकती है, वहाँ से वो प्रॉफिट नहीं बना सकते। दे आर नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट्स ऑन द इवेंट्स विच आर बीन हैपेंड टू द अदर पार्टी। दे हैव टू पे द लॉसेस एंड मेक देम हेल्प इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, proximate cause. Here, proximate cause means cause of losses may be of two kinds. One is insured and another is uninsured. Here, word is uninsured. Peril means perils. Perils means causes. Here, according to this principle, the insurer is liable for the losses only when such a losses is proximately caused by the perils which are stated in the policy. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो एक पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी के अंदर ऐसा लॉसेस अकर होना जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कॉज के बेस पे होता हो तो इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड पर्सनस को पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है, मतलब मैं इंश्योरर हूँ, अगर मैंने लॉसेस बनाए हैं तो लॉसेस जो बनाए गए हैं वो क्लॉज के अंदर होने ज़रूरी है, वो पॉलिसी के अंदर होने ज़रूरी है। अगर वो पॉलिसी के अंदर है तो मेरे को अमाउंट मिलेगा। When a loss occurred due to two or more causes, this proximate cause is the one which is most dominant and most effective cause। अगर कोई लॉसेस जो है वो 2 या 3 अलग अलग रीजन से होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो ही ये प्रॉक्सिमेट कॉजेज आपको हेल्प करते हैं मनी जनरेट करने में। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। According to this principle, the insurer get all the right against the third party with respect of the subject matter insured after compensating the losses of the insured। यहाँ पे क्या होता है कि मैं एज एन इंश्योरर ये गारंटी देखता हूँ कि थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जैसे दो लोगों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो गलती ए एंड बी के बीच में एक ही थी, तो ए ने बी को डैश कर दिया, बी जो है वो नॉर्मली हॉस्पिटल में जा चुका है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी उसके पास पैसा तो है नहीं, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा, तो ए को ट्रीटमेंट करनी है, तो ए जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर उसके पास है तो वो इंश्योरेंस से उस पर्सन की ट्रीटमेंट करवा सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। According to this principle, insurer who has paid the claim amount under an insurance policy has a right to recover the proportionate contribution for the other insurer. The insured can take more than one policy at the same time। यहाँ पर हम लोग अलग अलग जगहों पे एक ही टाइप का इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी से परचेज कर सकते हैं, और इन केस अगर लॉसेस होते हैं तो हम सब कंपनियों से क्लेम कर सकते हैं। इन केस अगर लॉसेस हो रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड तो हमारे पास कोई राइट नहीं है रिकवरी करने का मोर देन द अमाउंट। हम लोगों का जितने का पॉलिसी है उतने ही पॉलिसी तक का अमाउंट हम लोग रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कहा है इफ ही रिकवर्स द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉसेस फ्रॉम वन इंश्योरर ही कैन सीज टू हैव एनी राइट टू ऑब्टेन फर्दर पेमेंट फॉर द अदर इंश्योरर। अगर हमने 2 या 3 जगहों से इंश्योरेंस परचेज किए हैं, एक ही जगह से सारा अमाउंट रिकवर हो जाता है तो दूसरे 2 इंश्योरेंस को हम लोग सेव करके रखेंगे, उसको रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट इज इन सच अ केस अ प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज अप्लाइड, और ऐसी केसेस में इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन विल बी अप्लाइड, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन विल अप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, एक से कंपनसेशन पूरा रिकवर हो जाता है और दूसरे दो को हम लोग आगे रिजर्व करते हैं और वहाँ पे प्रीमियम्स और पे करते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज मिटिगेशन। मिटिगेशन में कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी of an insured to take care reasonable steps to minimize the losses or damage the insured property. मिटिगेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपने हिसाब से यहाँ पर स्टेप्स लेने हैं, और स्टेप्स ऐसे लेने हैं जिसमें आप मिनिमम लॉसेस बेयर कर सको या डैमेजेस जो है वो मिनिमम हो। This principle aims to make sure that the insurance behaves as a prudential person and does not become careless after taking the policy to cover any risk. मैंने अगर इंश्योरेंस ले लिया है तो इंश्योरेंस लेने के बाद मुझे ईज नहीं होना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं कम से कम गलती करूँ, और कम से कम गलती मतलब मेरे पैर में होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए सारा सिस्टम। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो फिर वो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कंपनी मुझे पॉलिसी के बेस पे पेमेंट कर सकती है। लेकिन आप एक बार पॉलिसी ले लेते हो तो आपको केयरलेसनेस नहीं दिखानी है, आपको प्रिकॉशंस लेके चलते ही रहना है। If reasonable care is not taken, then the claim of an insurance company may be lost. अगर आपने reasonable care नहीं किया या टेक केयर ऑफ गुड्स नहीं किया बराबर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकती है या आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। That's it for today. We have seen the principles and the functions and insurance topic. That's it for today. Thank you.